अब यहां पे दोस्तों फिर से रॉयटर्स की खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रंप कॉल्स यूके's चागोस डील विथ मॉरिशस स्टूपिड एंड वीक। ये इस तरीके से अपने दोस्तों के बारे में पब्लिकली बात करता है। द बेस्ट थिंग इज यू पिक अप द फोन एंड स्पीक टू केयर स्टारमर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। आप बात कर लो ना उससे यार, आप पर्सनली बात कर लो, नहीं पब्लिकली। अब ये देखिए कहता क्या है यूके को, फिर मैं आपको मैप पे समझाऊंगा कि हुआ क्या है, ये फिर से क्यों भड़का ये। शॉकिंगली आर ब्रिलियंट नेटो एलाई, अब ब्रिलियंट इसने इन्वर्टेड के बीच में डाला, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ही इज बीइंग sarcastic. The United Kingdom is currently planning to give away the island of Diego Garcia, the site of a vital US military base, to Mauritius, and to do for no reason whatsoever. There is no doubt that China and Russia have noticed this act of total weakness. These are international powers who only recognize strength, which is why the United States of America, under my leadership, is now, after only 1 year, respected like never before. The UK giving away extremely important land is an act of great stupidity and is another in a very long line of national security reasons why Greenland has to be acquired. Denmark and its European allies have to do the right thing. Thank you for your attention to this matter, blah, blah, blah. Washington last year gave its blessing to the deal, which gave the Indian Ocean Islands to Mauritius, but retained UK control of the Diego Garcia base under a 99-year lease. Responding to Trump's Chagos comments, the British government said the deal was made precisely for national security reasons. We acted because the base on Diego Garcia was under threat after court decision undermined our position and would have prevented operating as intended in the future. Responding to Trump's remarks, Mauritius Attorney General Gavin Glover said that his country's sovereignty over the archipelago has been unequivocally recognized by the international law and it should no longer be subject to debate. अब ये क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ना? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुमने क्यों दे दिया? अंग्रेज कह रहे हैं, यूके वाले कह रहे हैं कि साहब क्योंकि कोर्ट डिसीजंस हमारे फेवर में नहीं जा रहे थे। ये कहता भाड़ में गई कोर्ट, मिसाइल नहीं है कि तुम्हारे पास, मारो 4 मिसाइल, कब्जा कर लो। दैट इज प्रीटी मच व्हाट ही इज सेइंग। अब ये देखिए सब, अब दोस्तों ये कहानी हमने ली है बिजनेस स्टैंडर्ड से। What is the Chagos Island deal? Britain has controlled the Chagos Islands since 1968 after buying them from Mauritius for $3 million. Mauritius has long argued that it was forced to give up the islands as part of the independence process. In 2019, the International Court of Justice said UK should end its control of the island as soon as possible. Under the agreement reached last year, the UK will transfer sovereignty of the Chagos Islands to Mauritius but lease back Diego Garcia for 99 years to continue operating the US military base. The lease will cost the UK £101 million a year. The deal was welcomed by the US, Australia and other Five Eyes partners as well as countries including India, Japan and South Korea. Trump's latest comments mark a clear shift from his earlier stance. When Starmer announced the deal last year, he said Trump and other allies had welcomed it due to the strategic importance of the base. US Secretary of State Marco Rubio had also praised the agreement, calling it a major achievement and a sign of the strong US-UK relationship. Rubio said the deal would help promote peace and security in the Indian Ocean region and beyond. अब ये देखिए साहब, ये इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, ये इलाका है और ये आप देख रहे हैं भारत है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये मॉरिशस को वापस दे दिया। अब इधर एक बेस था, ये मिलिट्री बेस है, ये डिगो गार्सिया है, ये आइलैंड है, यहां पे यूएस का मिलिट्री बेस है। लोग कहते हैं कि जब मिडनाइट हैमर हुआ था, ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हुई थी, तो यहां से भी जहाज उड़े थे, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं। अब इसमें इशू यह है कि पूरा का पूरा यूके ने दे दिया मॉरिशस को कि आपका है, हम आपको वापस देते हैं। डन, ओके डन। जब वापस दे दिया तो फिर यूके ने एक डील साइन करी कि लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपसे 99 ईयर्स की एक लीज साइन करते हैं। और ये देखिए साहब, हम आपको 101 मिलियन पाउंड हर साल देंगे। 101 मिलियन पाउंड्स पर ईयर वी विल पे यू, विल पे टू द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस। और ये जो आइलैंड है ये हम अपने पास रखेंगे क्योंकि हमारा होगा आपका, लेकिन हमने आपसे लीज पे ले रखा है। और उस समय ट्रंप ने बोला वाह वाह बहुत अच्छा, मार्को रूबियो ने बोला वाह वाह बहुत अच्छा, सबने बोला वाह वाह बहुत अच्छा। अब ट्रंप पलट गया, ट्रंप कहता है ये तो स्टूपिडिटी है। ट्रंप पलट गया, ये तो स्टूपिडिटी है। और ये पूरा जो ग्रीनलैंड वाला मैटर है दोस्तों, क्योंकि इसने उसको ग्रीनलैंड से जोड़ दिया ना ट्रंप ने। ग्रीनलैंड में इनके 30 से ज्यादा बेसेस हुआ करते थे, यूएस की बात कर रहा हूं। 30 से ज्यादा बेसेस इनके ग्रीनलैंड में थे। अब इनका पिटूफिक बाकी है, एक बेस बाकी है। इन्होंने सारे बेस बंद कर दिए, हजारों की तादाद में अपने सोल्जर्स हटा दिया। आज की तारीख में ट्रंप आपको चूरन दे रहा है कि ग्रीनलैंड मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं वहां से चला गया, यूएस वहां से चला गया, या कुछ ऐसा हो गया वहां पे, अगर हमारा नहीं होगा तो फिर आके वहां पे रशियंस बैठ जाएंगे, चाइनीज बैठ जाएंगे, वो कब्जा कैसे कब्जा कर लेंगे यार?
कैसे कब्जा कर लेंगे? और अगर आपके लिए इतना जरूरी है तो आपने अपने बंदे क्यों कम करे? आपके इतने सारे बेसेस थे अकॉर्डिंग टू डेनमार्क रिपोर्ट्स में बोल रहा हूं। डेनमार्क की रिपोर्ट से कहते हैं कि इनके कई सारे बेसेस थे यार, कई सारे बेसेस सब बंद करके अब एक बेस इनका है, उसमें भी आधे बंदे हैं इनके। ये खुद वहां से लोगों को इन्होंने हटाया, खुद हटाया इन लोगों ने। आज की तारीख में कह रहे हैं हमें पूरा आइलैंड दे दो। और जब यूके ने वही काम करा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला, जो पूरी की पूरी बातचीत हुई कि यार इस तरीके से करना है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम फॉलो कर रहे हैं, और यूएस के इंटरेस्ट्स को टेकिंग इनटू अकाउंट यूएस इंटरेस्ट्स, सब कुछ करा। नाउ दे आर सेइंग कि तुमने गलती कर दी यार, दिस इज स्टूपिडिटी। पब्लिकली गाली दे रहा है, पब्लिकली यूके को गाली दे रहा है जो इनके क्लोजेस्ट एलाइज में से एक है। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों कि यूएस बिलीव्स इट्स पावर मैटर्स मोर देन इंटरनेशनल लॉ, यूएन चीफ टेल्स बीबीसी। और अब चीजें सामने आ गई हैं, चीजें सामने आ गई हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बोर्ड ऑफ पीस इसने बनाया है गाजा को लेके, ये काम तो यूएन का है, ये काम जो है वो यूनाइटेड नेशंस का है भाई। आपको क्यों लग रहा है कि भारत इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कुछ? आपको क्यों लग रहा है कि फ्रांस इसके लिए थोड़ा सा इफी है कि यार ये गड़बड़ है? फ्रांस इज नॉट सेइंग एनीथिंग, इंडिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग, या फ्रांस कह रहा है कि ये गड़बड़ है। ये क्या चक्कर है? मैं आपको बताता हूं। ये जो काम है सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के हैं। कोई भी एक देश ऐसे उछल के नहीं कह सकता कि हम बोर्ड बना रहे हैं और हम मिलके, तुम्हारा क्या लेना देना गाजा से? यू आर नॉट पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, यू आर नोबडी। तुम बीच में आ गए, अब तुम ये कब्जा करने के चक्कर में है गाजा को। मैं आपको बता रहा हूं, द यूएस इज एक्टिंग विद इंप्यूनिटी एंड बिलीव्स इट्स पावर मैटर्स मोर देन इंटरनेशनल लॉ। एंटोनियो गुटेरेस, द हेड ऑफ द यूएन, हैज टोल्ड द बीबीसी, देयर आर दोज दैट बिलीव दैट पावर ऑफ लॉ शुड बी रिप्लेस्ड बाय द लॉ ऑफ पावर। ये कितनी डीप बात इसने बोली है। देयर आर दोज दैट बिलीव दैट द पावर ऑफ लॉ शुड बी रिप्लेस्ड बाय द लॉ ऑफ पावर। Indeed, when one sees the present policy of the United States, there is a clear conviction that multilateral solutions are not relevant and that what matters is the exercise of the power and influence of the United States, and sometimes in this respect by the norms of international law. President Trump has previously been scathing in his criticism of the United Nations. Guterres admitted his organization was struggling to make members abide by the international laws laid out in the UN Charter. The UN was extremely engaged in solving major global conflicts. He insisted, but the UN has no leverage. The big powers have stronger leverage. तो ये अब देखिए, अब जो दरार है यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के बीच में, वो सामने आ गई। ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कभी नहीं दिया। ये सामने कह रहा है कि ये कह रहा है ट्रंप को कोई फर्क नहीं उसको पड़ता। और दोस्तों यही बात मैं भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत बार कह चुका हूं, जो अभी इन्होंने बोली है, राइट? मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार ये बात कर चुका हूं। मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा मेरा वीडियो देखें पुराना। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग अब चल चुका है पूरी तरीके से। एक इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने ये बोला है कि आई डोंट नीड इंटरनेशनल लॉ, ना मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है, ना मैं उसको जरूरी समझता हूं। मुझे रोकने वाली चीज मेरी खुद की मोरालिटी है, मेरी खुद की नैतिकता, मेरा खुद का चरित्र। अगर मुझे ऐसा लगता है ये चीज गलत है तो फिर मैं नहीं करूंगा, लगता है सही है तो करूंगा। उसका कानून से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा दोस्तों वीडियो, मैंने साफ तौर पे बोला है कि कोई कानून, कोई डिप्लोमेसी, नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज मिलिट्री पावर। बस यही ट्रंप कर रहा है, यही पुतिन कर रहा है, यही चाइना कर रहा है, यही दुनिया का दस्तूर है। वो बस देशों ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि डिप्लोमेसी भी एक चिड़िया का नाम है और ये जो यूनाइटेड नेशंस है वो नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? यूएन का सेक्रेटरी जनरल खुद कह रहा है यार, उसने फाड़ फूड़ के फेंक दिया, कह रहा मैं करूंगा जो मेरी मर्जी है, मेरी जो मर्जी है, तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, बाढ़ में जाओ। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। आप देख लीजिए, मतलब ट्रंप ने वो अपना एक पैरेलल यूएन बनाना चाह रहा है और उसने ये काम गाजा पट्टी से शुरू कर दिया है, अपना एक पैरेलल यूएन। इसको इन्विटेशन, एक बोर्ड बनाऊंगा मैं, तुम लोग $1 अरब दो, बोर्ड के मेंबर बनो, फिर एक साथ हम राज करेंगे। उसने चाइना को इन्विटेशन दे दिया, उसने रशिया को इन्विटेशन दे दिया, भारत को दे दिया, उसने फ्रांस को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, सबको दे दिया। ये अपना एक ऑल्टरनेट यूएन बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है डावोस चाइना's वाइस प्रीमियर cautions against law of the jungle. A select few countries should not have privileges based on self-interest, and the world cannot revert to the law of the jungle, where the stronger prey on the weak. Chinese Vice Premier He
Lai Feng said in a speech at the World Economic Forum in Davos, all countries have the right to protect their legitimate interests. He added, in a veiled reference to Trump's mercurial trade policies, he slammed the unilateral actions and trade agreements of some countries, which he said violates the rule of the World Trade Organization. We must firmly uphold the multilateralism and promote the improvement of a more just and equitable international economic and trade order. ये सारी की सारी गैस है जो मैंने आपको पढ़ के बताया ना. दिस इज ऑल हॉट एयर. ये हीलियम है. दिस इज गैस. चाइना भी एग्जैक्टली वही करता है जो अमेरिका करता है. ठीक है. चाइना अभी नंबर 2 पे चल रहा है, इसलिए चाइना को यूएस से दिक्कत हो रही है. चाइना भी यही करता है. आप कुछ भी बोल के देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक कमेंट दे के देखो ताइवान के लिए कि ताइवान शुड बी इंडिपेंडेंट. कल चाइना अपना ट्रेड आपके साथ रोक देगा, आपको परेशान करेगा. चाइना डज एग्जैक्ट. डोनाल्ड ट्रंप बड़बोला है. फर्क चाइना और अमेरिका में यह है आज की तारीख में, डोनाल्ड ट्रंप बड़बोला है, वो ट्वीट करता रहता है, मीडिया में आता रहता है. शी जिनपिंग आपको मीडिया में ना के बराबर दिखेगा. लेकिन चुपचाप चाइना भी वही काम कर रहा है. आप देखना नॉर्वे के साथ इनकी क्या लड़ाई हुई थी. व्हेन आई से लड़ाई, आई डोंट मीन वॉर. इनकी जो इकोनॉमिक वॉर हुआ था नॉर्वे के साथ, इनको पता है कि लोग चाइना पे डिपेंडेंट हैं. चाइना इज ऑल्सो लाइक दैट. आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को नीचे दिखाने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म की. कोई मल्टीलैटरलिज्म नहीं. चाइना वांट्स टू रिप्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इन्होंने हर जगह अपना जाल बिछा रखा है और ये यही काम करते हैं. चाइनीज वही काम करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से 1000 गुना ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं. 1000 गुना ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं. डोनाल्ड ट्रंप तो बड़बोला है ना, भूल गया ईरान, भूल गया कभी ग्रीनलैंड, भूल गया फिर कहता कनाडा चलो, कहीं यहां चलो. चाइना ने तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है. दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग. ठीक है ना. डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, राइट. डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वो इतिहास की बात करता है. वो कहता है कि देखो हिस्टोरिकली तुम्हारा कभी नहीं था और कोई बोट्स आई थी कई 100 साल पहले, कुछ हुआ था इसलिए मुझे चाहिए. चाइना वही चीज कहता है. चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली साउथ तिब्बत है, मुझे अरुणाचल प्रदेश चाहिए. उसकी इंडोनेशिया के साथ प्रॉब्लम है, उसकी मलेशिया के साथ प्रॉब्लम है, उसकी हर एक देश के साथ प्रॉब्लम है. You don't have to have a border with China to have a border dispute with China. आपका कोई बॉर्डर चाइना के साथ होना वो आवश्यक नहीं है कि आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो. किसी के साथ भी ट्वाइस रिमूव्ड आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है. आप 1000 किलोमीटर दूर हो, आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है चाइना का. चाइना हैज प्रूव्ड दैट. जमीन पे नहीं होगा, पानी पे होगा. चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट होगा. तो यहां पे जो चाइना अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि साहब सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज शुड नॉट हैव द प्रिविलेज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट. चाइना का पूरा मामला सेल्फ इंटरेस्ट पे है भाई. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट. और दोस्तों, EU nears historic trade deal with India. Von der Leyen says the European Union is on the verge of concluding a free trade agreement with India. All the work remains to get it over the line. European Commission President Ursula von der Leyen said in a speech at the World Economic Forum in Davos on Tuesday, there is still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Some call it the mother of all deals, one that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP, she said in a section of a speech on EU efforts to diversify its trade. According to a press release by the Ministry of External Affairs of India, von der Leyen will be on a state visit to India from 25th to 27th January 2026 as a chief guest at the 77th Republic Day celebrations. जब दोस्तों मैं आपको पहली स्लाइड समझा रहा था, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था कि जब मैंने बोला था ना आपको कि रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए और मेरी पहले बैकग्राउंड स्टोरी समझिए. ये वही बैकग्राउंड स्टोरी है. अब दोस्तों एक बात बताइए, 2-2.5 दशकों से डील चली आ रही कि डील होगी 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 होगी. यूरोप के बीच में मर्कोसर डील जो साउथ अमेरिका के साथ हुई है, 4 देश उसमें, वो अभी क्यों हुई? जब 25 साल से वो नहीं हो पा रही थी और सिर्फ डिस्कशन हो रहा था, अचानक कैसे हो गई एक दिन? अचानक ऐसे हो गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे लड़ाई मोल ली. अब लोग कह रहे हैं यार कि अमेरिका से हमारी जान छुड़वाओ यार, सॉरी गलती हो गई हमसे, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, अब हमें किसी और डायरेक्शन में जाना है. राइट. अमेरिका के साथ भारत का सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक आ गए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. हमें कोई आपत्ति नहीं है, यू मस्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट इट डज नॉट मीन दैट you start fighting with the rest of the world because America can't do it alone. Nobody can do it alone. ये अमेरिकन में गलत फहमी है. जो भी ऐसा समझता है कि हम लोग अकेले ही चप्पू चला लेंगे और नाव बड़ी तेजी से चलेगी, नहीं, it can't be done like that. Supply chains are extremely sophisticated and extremely complicated. सिर्फ कनाडा और यूएस के बीच में दोस्तों, एक अगर ऑटोमोबाइल की आप ले लीजिए ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, हर एक कंपोनेंट में काम होता है और हर एक कंपोनेंट जो है एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाता है. ऐसे कई कंपोनेंट्स हैं. सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल की. एक कंपोनेंट 3-4 बार बॉर्डर पार करता है.
3-4 बार बॉर्डर पार करता है, वही कंपोनेंट जाता है कनाडा, फिर यूएस, फिर कनाडा, फिर यूएस, तब जाके असेंबल होता है। ऐसी सप्लाई चेन है, एंड दीज सप्लाई चेन्स वर बेस्ड ऑन वन सिंपल फिलॉसफी कि ये जो अरेंजमेंट है बिटवीन यूएस एंड कनाडा, राइट, यूएस एंड कनाडा के बीच में जो अरेंजमेंट है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोग दोस्त हैं, हम लोग भाई हैं, ऐसे ही चलता चला आएगा। ट्रंप ने वहां पर भी बर्बादी कर दी। अब भारत ने दूसरा रास्ता देख लिया। हां, जो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, नो डाउट भारत को फर्क पड़ा है उससे, नो डाउट नुकसान हुआ है, लेकिन हम नुकसान हर रोज अपना धीरे 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 कम कर रहे हैं और कुछ सालों में यह नुकसान जीरो हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कुछ सालों के बाद एक और राष्ट्रपति यूएस में आएगा और फिर वो चाहेगा भारत से बात करना। पर दोस्तों याद रखिएगा, भारत हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर कोई और देश, अमेरिका के ऊपर इतनी आसानी से कोई भरोसा नहीं करेगा।